वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है यूके मैन स्किप्स 3 years NHS वेट गेट्स नी सर्जरी इन इंडिया फॉर 14,000 पाउंड्स। वैसे हम लोग काफ़ी देखते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मेडिकल वीज़ा लेकर आते हैं, मतलब मेडिकल के लिए टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म को अगर हम देखें तो इंडिया में काफ़ी टाइम से ये हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और माय ब्लॉग चैनल का लिंक भी आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए। What if you were told to wait for 3 years to get a surgery that gives you a new lease of life? For one British man, that was the reality until he came to India. According to claims by the medical travel company, the firm that arranges medical related travel abroad, the man was able to walk within days after the knee surgery. Jean Paul, a 51-year-old British citizen, had chronic pain in his knees for 5 years. He paid for private scans. Then he took the results to his general practitioner, his family doctor. Finally, he was referred to an orthopedic specialist, and the diagnosis was clear. Both knees needed to be replaced. Through the medical travel company that facilitated this procedure, doctors from India started working with him prior to his arrival. Jean Paul then arrived at the Max Health Center. Doctors performed a double knee replacement. The medical travel facilitator shared his journey online. The images showed Jean Paul being taken in for surgery. And then came the moment he had been waiting for. Just hours after the procedure, he was able to walk with support, but his full recovery was still few days away. The difference was not only about time, it was also about cost. The UK private option was reportedly estimated around £40,000, which is about 54,000 US dollars and approximately 54 lakh 1,820 in Indian rupees. That included surgery, aftercare and physiotherapy. However, in India, his reported package cost around £14,000, roughly 18,900 US dollars, which is around 18 lakh 4,811 in Indian rupees. And that package included the surgery, flights, accommodation, meals, insurance and clinical care. But the operation was only the beginning. Jean Paul spent 2 weeks at a specialized aftercare center. Every day meant intensive physiotherapy. Step by step, he started getting his mobility back. 3 weeks after the surgery, he was reportedly walking up and down stairs. He was back home in Britain, walking his dogs, taking evening walks along the canal with his wife, and watching his children play football. He even gave his new knees a nickname, Johnson & Johnson. A little piece of India, he says, that he's taking home. Jean Paul's story is part of a much bigger shift. In recent months, videos of foreign patients praising India's healthcare have repeatedly gone viral. And the numbers show why. India's medical tourism market is estimated at 12.32 billion US dollars this year. By 2031, it is projected to reach 22.11 billion US dollars. That is a growth rate of nearly 16% a year. More than twice the roughly 7% growth projected for India's overall tourism industry. Official government data also shows the scale of this trend. In early 2025 alone, India recorded more than 1.31 lakh foreign arrivals for medical purposes. The government is pushing this through its Heal in India framework, promoting the country as a destination for specialized medical care for international patients. But behind every number is a person. For Jean Paul, it was about something much simpler. Getting out of a chair, walking his dogs, standing at his children's football matches and getting his life on hold back again. इस चीज़ का हमें भी जो है वो पता है कि इंडिया में जो मेडिकल टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया से जो है लोग वहाँ पर जो उनके अपने मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा महंगे इलाज होते हैं या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, जैसे हम पाकिस्तान से भी देखते हैं
कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते, लोग वो इंडिया जाकर जो है वो करवाते हैं, मेडिकल टूरिज्म का जो वीज़ा आता है उस पर। बिल्कुल, अभी बल्कि रिसेंटली मैंने एक रील भी देखी थी, पाकिस्तानी लेडी थी, उनके बेटे की पता नहीं कोई सर्जरी हुई थी इंडिया में, और वो बता रही थी कि कितने अच्छे लोग हैं वहाँ के और कितना अच्छा उन्होंने ख्याल किया। इवन कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत चेंज है पाकिस्तान में। वाकई में डॉक्टर्स ना बहुत, अब मैं क्या ही बोलूँ, बट चाहे आप अच्छे डॉक्टर के पास भी चले जाओ, इनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड होता है और मुझे नहीं समझ आता वो किस चीज़ का होता है। वो ट्रेनिंग का इशू आ जाता है ना, सारा माइंडसेट अजीब है। हाँ, कि मतलब नहीं है। आपका जो प्रोफेशन है आप उसको जस्टिफाई नहीं करते कि एक पेशेंट को आपने तसल्ली देनी है, ना कि उल्टा डांट डांट के बीमार करना है। तो ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो मैं कहूँगी कि थोड़ा वेल अवेयर है चीज़ों को लेकर, तो उनके साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन कोई बेचारा ऐसा मासूम सा है जिसको नहीं आइडिया, उनके साथ अलग उनका रवैया होगा। मतलब आप क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं शायद आपको डांट ना पड़ जाए। बट ऑन द अदर साइड मैंने जब भी इंडिया के डॉक्टर्स की बात सुनी है, मैंने हमेशा उनकी तारीफ़ सुनी है, उनके स्टाफ की। और जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस्ट का कितना बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में तो आपको फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आती हैं मेडिकल की, और दूसरी साइड पर आपको इंडिया में मेडिकल को लेकर देखा जाए तो एक तो बहुत सस्ता पड़ जाए, और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ना हर चीज़ का इलाज मैंने देखा इंडिया में ये नहीं है कि काट कूट कर फेंक दो, कि मतलब सर्जरियाँ ही कर दो। बहुत सही बात है, यहाँ पर तो आप डॉक्टर के पास जाओ ना तो उन्होंने कहना अच्छा इसी भी सर्जरी कर दो, उसी भी सर्जरी कर दो, ये कर दो। और लोग वाकई में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। अब देखो यूके में, अब यहाँ पर हम बैठे हुए हम लोग सोचते हैं कि भाई यूके इतना एडवांस कंट्री है, बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पर तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब वहाँ से लोग मतलब देखो, इसका मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर्स की, वहाँ पर मेडिकल की उस तरह की आपको सहूलतें नहीं है कि लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है। नहीं, सहूलतें तो होती हैं, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा इशू आता है ना वो मेडिकल कॉस्ट का आता है। अगर आप, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ देखूँ ना कि भाई अगर आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, हर चीज़ अच्छी मिल रही है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी उसी तरह जो है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज़ जो है जो आपको यूके, कनाडा, यूएस में जो है भाई वो कई हज़ार डॉलर्स में जो है वो पड़ रही है, वही अगर आप इंडिया मेडिकल टूरिज्म में आते हैं तो भाई वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में जो है वो पड़ती है। और ये हकीकत है, ये कोई ढकी छुपी जो है वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने, एक पहलू ये भी सुना है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर कॉस्ट का बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट इसके अलावा भी मैंने ये चीज़ अपने बहुत सारे जानने वाले जो कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटल हैं, उनसे सुना है कि अगर आपको जैसे बुखार भी है तो वो आपको मेडिसिन नहीं देते फ़ौरन से, ठीक है ना, आपको वेट करना पड़ता है। तो वेट करना, वेटिंग लिस्ट में रहना एक लंबे टाइम तक, ये भी वहाँ की एक प्रॉब्लम है। तो मुझे तो यही फिर रीज़न नज़र आती है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ में भी उतनी नहीं है कि जितने हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ये मुझे लगता है। नहीं, वहाँ पर प्रोसीजर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ये चीज़ होती है ना कि भाई ज़रा सा बुखार हुआ है, हमने वो नेशनल मेडिसिन बनाई पैनाडोल, एक खा लो। यहाँ से लोग लेकर जाते हैं, हाँ, तुम्हें पता है हमारे ज़रा सी थकावट हुई है, पैनाडोल खा लो, रात को सोने से पहले पैनाडोल खा लो, सही हो जाएगा। बंटी समझा हुआ है हमने पैनाडोल को। तो वहाँ पर चीज़ें जो है आपको इस तरह नहीं नज़र आती। वहाँ पे हाँ आपको मल्टीविटामिन्स जो हैं वो दे देंगे, लेकिन मेडिसिन देने में वो थोड़ा सा करते हैं। लेकिन फिर जो इतनी आपको, आप वेटिंग लिस्ट में जो आपको टाइम मिल रहा होता है आपके प्रोसीजर का, वो क्यों इतना टाइम मिलता है? ये जो आपकी जो बहुत इमरजेंसी वाली है ना, वो तो वो ऑन द स्पॉट हैंडल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पे उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे टाइम वो दे सकते हैं, वहाँ पे वो टाइम जो है वो देते हैं। हाँ, ऑन दी अदर साइड वहाँ पे भी ऐसे हॉस्पिटल ज़रूर हैं कि भाई अगर आप नहीं वेट करना चाह रहे, आप बिल्कुल ही प्राइवेटली करना चाह रहे हैं कि भाई हम अभी, यानी कि आप बहुत ही उतावले हो गए हैं, नहीं सानू नहीं चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, वैसे मुझे जहाँ तक आइडिया था मैंने वो जिक्र किया। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना है इसके बारे में। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब